गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तो जो हमने लेविस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट किया है, जिसमें विच वाज बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। तो आज हम उस ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल हमारा था कि एटम्स कंबाइंस टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, एटम्स कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। तो उसकी यहाँ कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं। द फर्स्ट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इनकम्प्लीट ऑक्टेट of central atom. There are some molecules in which central atom have not complete their octet, but molecule exist. For example, AlCl3. In aluminum chloride, aluminium have 3 valence electron which it shared with 3 chlorine. Or we can also show it like this: aluminium has 3 valence electron and is shared by 3 chlorine atoms. Chlorine complete its octet by sharing of 1 electron. All the chlorine atoms complete their octet, but aluminium have only 6 electron in their valence shell after sharing. तो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, लेकिन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, तब भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। बेरिलियम क्लोराइड, अनदर एग्जांपल वी कैन टेक BCl2, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम हैव ओनली 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ये बेरिलियम है, ओनली 4, सो octet is not complete, but such molecule exist. So this is the first drawback, incomplete octet. Similarly, there are also some expanded octet. There are also some molecules with expanded octet where central atom have electrons more than 8. सेंट्रल एटम है इलेक्ट्रॉन मोर देन 8। अभी हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल लिया था SO4 का, उसकी मैंने स्ट्रक्चर आपको बताई थी कि मोस्ट प्रेफर्ड स्ट्रक्चर इज दिस वन, दिस इज द प्रेफर्ड स्ट्रक्चर। नाउ सल्फर इन दिस स्ट्रक्चर हैव 12 इलेक्ट्रॉन्स। यू कैन चेक हियर 4 to 6, 10 and 2, 12 electrons. Another example we can take PCl5, in which phosphorus having 5 valence electron, share the 5 electrons with 5 chlorine, and hence it will have total 10 electrons. So it is electron rich expanded octet, or we can also say it electron rich. Electrons are more than octet. SF6, one more example is SF6, in which sulfur having 6 electrons in their valence shell shared each electrons with fluorine and have 12 electrons. Fluorine will have complete their octet, हर एक फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन सल्फर में इलेक्ट्रॉन 12 होंगे। सो दिस आर
expanded octet compounds in which central atom have electrons more than 8. There are also some compounds which have odd electron. Third, odd electron molecules. Odd electron molecules. For example, NO. In NO, नाइट्रोजन हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ओड इलेक्ट्रॉन इसको हम बोलते हैं. सिमिलरली NO2 also have one odd electron on the nitrogen atom. So such electrons, odd electrons, are also not explained by octet rule. So these are also limitation of octet rule. तो ये लिमिटेशन है octet rule की. अब इसके बाद आप देखें नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक इसमें और है, रेजोनेंस. रेजोनेंस, व्हाट इज रेजोनेंस? व्हाट इज रेजोनेंस? तो अब इसमें हम नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक लेके चलेंगे. What is resonance? According to this concept of resonance, whenever a single live structure, whenever a single live structure cannot describe a molecule accurately, describe a molecule या describe all the properties of molecule, describe all the properties of molecule, then a number of structures, then molecule is given, molecule is assigned a number of structure, assigned a number of structures. जब कोई एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करती तो मॉलिक्यूल्स को काफ़ी सारी स्ट्रक्चर, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर असाइन की जाती हैं. द मॉलिक्यूल इज असाइंड ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेटिंग या इसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं. देन मॉलिक्यूल इज असाइंड ए लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल हैव सिमिलर एनर्जी एंड सेम रिलेटिव पोजिशन ऑफ एटम्स. Assigned a number of structures called resonating structures with similar energy. Similar energy means there may be small difference. Similar energy and same relative पोजिशंस ऑफ एटम्स की पोजिशन सेम रहती है. एंड ऑल्सो सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. This phenomena is called resonance. When a single structure, फिर से देखिए जाए इसकी डेफिनेशन को, when a single live structure cannot describe all the properties of molecule, the molecule is assigned a number of structures called resonating structure with similar energy, same relative position of atoms, and same number of unpaired and paired electrons. This phenomena is called
इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। और जो स्ट्रक्चर्स होंगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड resonating structure. The molecule as such has a single definite structure which is resonance hybrid of the resonating structure and can not as such be depicted by a Lewis structure. मतलब एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होती है वो इन्हीं सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कहीं बीच में होती है, जो कि हम एक्सप्लेन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस को नहीं दे सकते। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, व्हाट डज इट मीन। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ओजोन लेते हैं। ओजोन को हम लेविस स्ट्रक्चर देते हैं दिस वन, इन विच 2 ऑक्सीजन एटम्स आर अटैच्ड बाय डबल बॉन्ड एंड 1 बाय सिंगल बॉन्ड, एंड these आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Now this is the structure of ओजोन, लेविस सिंबल गिवन टू इट। लेकिन इस स्ट्रक्चर में वी हैव 2 ऑक्सीजन एटम विद डबल बॉन्ड। नाउ बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड लेस विल बी द बॉन्ड लेंथ। दूसरा ऑक्सीजन जो हमारा है सिंगल बॉन्ड का, इसका मतलब उसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, बॉन्ड की लंबाई जो है इस सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होनी चाहिए और डबल बॉन्ड की कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो फिर हम दूसरी स्ट्रक्चर देते हैं, इस तरफ डबल बॉन्ड और इस तरफ सिंगल बॉन्ड। तो अब आपका ये वाला बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी स्मॉल होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा भी नहीं है। दोनों बॉन्ड लेंथ्स इक्वल होती हैं, दोनों बॉन्ड लेंथ, the bond length between these 2 oxygen atom and bond length between these 2 oxygen atoms both are equal। तो इक्वल बॉन्ड लेंथ है तब उसको 2 स्ट्रक्चर दी जाएंगी। वन इन फर्स्ट स्ट्रक्चर द फर्स्ट 2 oxygen atom, this 1 and 2, it will have double bond and 1 and 3 will have single bond. In the second structure oxygen 1 and 3 will have double bond and 1 and 2 will have single bond, but actual structure is in between these two, which we say is resonance hybrid। in both have partial double bond character, double bond character दोनों में होगा, and this resonating structure resonance hybrid is given by triple parallel lines, whereas resonating structures are shown by double arrow। जो 2 resonating structures होती हैं उनके बीच में डबल एरो का सिंबल होता है, और जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उनके बीच में ट्रिपल पैरेलल लाइंस होती हैं। और स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, कार्बोनेट की स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इन कार्बोनेट द लेविस स्ट्रक्चर इज C double bond O, single bond O and single bond O with these two have negative charges। ये हमने स्ट्रक्चर कल कार्बोनेट की लास्ट वीडियो में बनाई हुई थी। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो अगेन वही, जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए और जो सिंगल बॉन्ड है वहाँ बॉन्ड लेंथ लंबी होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। अब बॉन्ड लेंथ्स इक्वल हैं, लेकिन बॉन्ड लेंथ इक्वल कैसे हो सकते हैं जब यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ हम मानते हैं कि 134 एंगस्ट्रॉन है मान लीजिए, और कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेंथ अगर आपकी 154 एंगस्ट्रॉन है, तो दिस बॉन्ड लेंथ कैन नॉट बी इक्वल टू दिस वन। तो ये इक्वल हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ इक्वल हैं। तो इसके लिए फिर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इसको प्रोवाइड करते हैं। वो क्या स्ट्रक्चर्स होंगी? एक स्ट्रक्चर तो अभी हमने ये आपको बताई,
उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, बताया था आपको। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंबल है। अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होता है तो यहाँ आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। एक सिंगल बॉन्ड पहले ही है, एक डबल बॉन्ड और आ जाएगा ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर दैट अदर इलेक्ट्रॉन्स, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है आपका, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा एंड दिस विल रिमेन एज सच। तो अब नेगेटिव चार्ज इसका ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पर होंगे, यहाँ आपका चार्ज नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ये शिफ्ट होगा जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ वापस आ जाएगा एंड इट विल बी अगेन सिंगल बॉन्ड। ये आपका सिंगल रहेगा एज सच। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगी वो होगी एक्चुअल स्ट्रक्चर विच इज इन बिटवीन दीज थ्री स्ट्रक्चर्स and there will be partial double bond character between these all the three and overall molecule will have 2 negative charge। तो इस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो व्हाट आर द कंडीशंस या रूल्स फॉर राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? रूल्स फॉर राइटिंग resonating structure. The first is relative position of atoms will remain same. Relative position of atoms remain same. एटम्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। All resonating structures should have same number of unpaired electron. All resonating structure should have same number of unpaired, अगर कोई odd इलेक्ट्रॉन उसमें है, unpaired इलेक्ट्रॉन, अगर odd इलेक्ट्रॉन कोई है तो एक अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव नियरली सेम एनर्जी। थर्ड, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड हैव nearly same energy. Nearly same energy means there may be small difference in energy. Like charges should not be placed on adjacent atoms. So fourth point, like charges should not be present on adjacent atoms. लाइक चार्ज जो उसे रिपेल करते हैं तो वो दूर दूर होने चाहिए, एडजेसेंट एटम्स पर नहीं होने चाहिए। एंड वन मोर पॉइंट, अनलाइक चार्जेस शुड नॉट बी एट फार डिस्टेंस। ये आप कह सकते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस है वो दूर नहीं होने चाहिए और लाइक चार्जेस एडजेसेंट एटम्स पर नहीं होने चाहिए। अनलाइक चार्जेस should not be largely separated. Largely separated. One more point you can take. Negative charge should be present on
ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ रूल्स हैं हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे अब एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट आयन होता है हमारा CH3CO नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पर यहाँ शिफ्ट होगा और इस तरह से हमारा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी नेगेटिव एंड दिस टाइम डबल बॉन्ड हेयर। इस तरह से फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होती है हमारी, फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस दिखा सकते हैं हम। व्हाट इज फिनॉक्साइड आयन? दिस इज फिनॉक्साइड आयन। इससे पहले बल्कि बेंजीन में रेजोनेंस देख लीजिए आप, बेंजीन ये है हमारी, इसमें भी रेजोनेंस होती है लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होते हैं अल्टरनेट, इसमें जो शिफ्टिंग है वो कुछ इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ एंड दिस विल हियर। तो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग यहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है रेजोनेंस में, ध्यान रखना। पाई बॉन्ड या जो हमारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शिफ्टिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग नहीं होती, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग में आपकी बॉन्ड डिसोसिएट होकर एटम्स की पोजीशन चेंज हो सकती है। लेकिन हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक बात और आप ध्यान रखना, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, एक्चुअल में किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती। अब बेंजीन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो हमारा ये होता है, इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर, ये डॉटेड स्ट्रक्चर होती है, बिकॉज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑल ओवर द रिंग। तो फिनॉक्साइड आयन की हम बात कर रहे थे, फिनॉक्साइड आयन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी, ये आपका फिनॉक्साइड आयन है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कोई भी हो, एटम्स की पोजीशन में चेंज नहीं होता, एटम्स की पोजीशन में चेंज नहीं होता, इसलिए एटम्स की पोजीशन हमारी यही रहेगी। 6 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, द पोजीशन ऑफ एटम्स विल रिमेन सेम। तो अब इस स्ट्रक्चर में जो हमने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग दिखाई है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर आकर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बाकी बॉन्ड आपके यहाँ रहेंगे। टेल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, हेड पर नेगेटिव आता है। तो इस ऑक्सीजन पर जो हमारी ये टेल थी यहाँ पर, इस टेल की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पहले ही है, तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल, और जहाँ पर हेड आएगा यहाँ नेगेटिव चार्ज, उसके बाद यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए तो इस कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपका यहाँ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आके आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बॉन्ड एज सच रहेंगे। इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका, एंड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट हेयर, सो देयर विल बी नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम। बाकी जो 2 डबल बॉन्ड है ये और आपका डबल बॉन्ड वो एज सच रहेंगे। इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट हेयर, सो हेयर विल बी डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई ऑक्स था वो वापस ऑक्सीजन पर चला जाएगा, सो ऑक्सीजन पर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी 2 बॉन्ड एज सच रहेंगे। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारी फिनॉक्साइड आयन की। इसी वे में आपकी क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से चलेंगे उसमें भी। क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, उसमें आपकी जो स्ट्रक्चर्स बनेगी, एटम्स की पोजीशन फिर से वही दिखानी है आपको, एटम्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो क्लोरीन और इस पर आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्लोरीन और कार्बन के बीच में, जब क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, बाकी बॉन्ड ऐसे चलेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सेम वैसी चलेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ
एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। उसके बाद क्लोरीन पर इस बार पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव ऐसे ही रहेगा और आपको ये बॉन्ड ऐसे रहेगा। और लास्ट स्ट्रक्चर में फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वहाँ शिफ्ट होकर क्लोरीन पर फिर से 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और न्यूट्रल हो जाएगा एंड 2 बॉन्ड ऐसे रहेंगे। तो इस तरह से हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपको बनानी आनी चाहिए, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ तक आज हम कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद हमारी 3 थ्योरी शुरू होंगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ मिलेंगे। थैंक यू।